were talking about like logistic regression. So हमने बात की थी कि logistic regression linear regression से कैसे डिफरेंट है, कैसे हम linear regression की आउटपुट को sigmoid फंक्शन से गुजारते हैं और ऐसा गुजारने से हमें क्या फ़ायदा होता है कि हम अपनी आउटकम को बाइनरी क्लासिफिकेशन की सेंस में प्रोटेक्ट कर पाते हैं, जो कि हम linear regression में नहीं कर पा रहे होते क्योंकि उसमें आउटपुट कंटिन्यूस होती है. तो हम रिस्ट्रिक्ट कर लेते हैं अपनी आउटकम्स को, जो कि रिक्वायर्ड क्लासिफिकेशन के केस में. अच्छा, फिर हमने बात की थी कॉस्ट फंक्शन की. अगर आपको याद हो तो लीनियर रिग्रेशन के केस में हमने जो कॉस्ट फंक्शन इस्तेमाल किया था वो मीन स्क्वायर्ड एरर था. ठीक है, तो हमने लास्ट टाइम ये बात की थी कि मीन स्क्वायर्ड एरर लीनियर रिग्रेशन के केस में तो सूटेबल फंक्शन है क्योंकि इट टर्न्स आउट टू बी कॉन्वेक्स इन दैट केस, बट इट डजंट टर्न आउट टू बी कॉन्वेक्स फॉर द केस ऑफ लॉजिस्टिक रिग्रेशन. ऐसा क्यों होता है? दिस इज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ दिस कोर्स, right? But it's just that the fact is that the mean squared error is a good function, is convex for like linear regression, but it's not the same for logistic regression. अब logistic regression में हम फिर कोई और cost function चाहेंगे, कोई ऐसा cost function चाहेंगे जो कि convex हो, क्योंकि जो learning algorithm हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो gradient descent है और gradient descent के अंदर ये characteristic है कि अगर एक global minima है तो वो उसको locate कर लेगा, और एक ग्लोबल मिनिमा का मतलब है कि फंक्शन जो है वो आपका कॉन्वेक्स है. लेकिन अगर फंक्शन कॉन्वेक्स नहीं है तो फिर जिस भी पर्टिकुलर रेंज के अंदर ग्रेडियंट डिसेंट स्टार्ट लेगा वहाँ जो लोकल मिनिमा होगा वो उसी को लोकेट कर पाएगा, वो ग्लोबल मिनिमा को लोकेट नहीं कर पाएगा. सो नाउ वी आर गोइंग टू डेवलप अ कॉस्ट फंक्शन फॉर लॉजिस्टिक रिग्रेशन व्हिच इज कॉन्वेक्स फॉर इट. So हमारा जो ट्रेनिंग सेट था that consisted of like number of training examples, say m training examples, right? And say we were predicting whether based on like these characteristics is the tumor indicating malignancy or not. So it is outcome is 0 and 1, right? So what we were doing was that we used to take the output of the linear regression and used to pass it from the sigmoid function, that was 1 over 1 plus e raised to power minus z, where z is the output of the linear regression in this case, right? And we like need to play with the parameters w and b because these are the two parameters that we can find here. So this story is the same as in linear regression, other than the fact that we are using sigmoid function. Okay. So for squared error we said that this is the squared error is convex for linear regression. This function has this very nice bowl shape, right? So it is possible for gradient descent to locate the global minima in this case because there is one global minima, no local minima. But it turns out that this function, this same mean squared function, is not convex for the case of logistic regression. So it could have any wiggly shape. This is just one hypothetical shape that we have shown here, that it is going like this, this. Now the problem with this is that suppose gradient descent starts here. Now the immediate nearest local minima is this. At this point the gradient will become 0 and the update in the weight will not be possible. So it will not be able to recover from this local minima, and the gradient descent will say that जनाब यही है आपका local minima, यही आपका global minima, इससे बेहतर आप इस फंक्शन को ऑप्टिमाइज नहीं कर सकते. जबकि अगर हम सिर्फ इस डायग्राम को देखें तो हमें मालूम है कि हमारा ग्लोबल मिनिमा यहाँ एग्जिस्ट करता है, लेकिन चूंकि फंक्शन कॉन्वेक्स नहीं है तो हम यहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे. सिर्फ एक ही सूरत है कि हम यहाँ पर आ सकें कि अगर हमारा ग्रेडियंट डिसेंट बाय चांस यहाँ पे स्टार्ट ले, और अब यहाँ पे स्टार्ट लेगा या ना लेगा ये तो एक बिल्कुल रैंडम सी बात है. मुमकिन है और ऐसा मुमकिन है कि कभी ऐसा ना हो पाए, right? So we want to have a kind of guarantee that we can find the global minima, and that is only possible when this function is shaped like this function. अगर इस फंक्शन की शेप इस तरह की हो फिर तो ये मुमकिन है, वरना मुमकिन नहीं है. लिहाजा हम मीन स्क्वायर्ड एरर को लीनियर रिग्रेशन के लिए जहां बहुत खुशी से इस्तेमाल कर रहे थे वहीं हम इसको लॉजिस्टिक रिग्रेशन के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे. हमें अब ऐसा फंक्शन चाहिए जो कि इस किस्म की शेप ना रखता हो बल्कि उसी किस्म की शेप रखता हो जिस किस्म की शेप हमें लीनियर रिग्रेशन के लिए मीन स्क्वायर्ड एरर की मिल रही है, यानी कि फंक्शन कॉन्वेक्स हो. सो बेस्ड ऑन दैट मोटिवेशन we propose a new function, right? We call it like log loss function, logistic loss function, or we also call it like maximum likelihood, that is a term from
statistics. So like there are a number of ways to like calling it. We also call it sometimes cross entropy, right? There are like many different names that are used for this kind of function. So what is this log loss function? It says take the prediction, जो भी prediction आपके मॉडल ने आपको दी है, right? वो prediction लीजिए और उसका नेगेटिव लॉग ले लें, right? अच्छा, अब आपके पास चूंकि आउटकम्स दो हैं, अगर आपका एक्चुअल लेवल 1 है, अगर आपका एक्चुअल लेवल 1 है, राइट, तो दिस इज व्हाट यू आर गोइंग टू यूज एज द लॉस फंक्शन, अगर आपका आउटकम, अगर आपकी आउटकम 1, ठीक है, और अगर आपकी आउटकम 0 है तो फिर आप क्या यूज करेंगे, माइनस लॉग 1 माइनस दिस, राइट, यानी you will be using negative log of the prediction if the actual level is 1 and 1 minus the actual negative log of 1 minus the actual prediction when the outcome is 0. So एक चीज तो हमें यहाँ नजर आ रही है कि एक तरफ हम एक फिगर ले रहे हैं और दूसरी तरफ उसका कॉम्प्लीमेंट ले रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये जो हमने ये कहा कि आप अपनी प्रेडिक्शन को सिंपली लॉग से गुजारते हैं और इसको बतौर लॉस फंक्शन इस्तेमाल करें, इसका मतलब क्या है? जब हम किसी चीज का लॉग लेते हैं तो लाइक ये बात तो हमें मालूम है कि ये तो प्रेडिक्शन है हमारे मॉडल की, हमारा मॉडल जो चीज़ प्रेडिक्ट कर रहा है वो यही चीज़ प्रेडिक्ट कर रहा है, ठीक है। अब इसको जब हम यानी लॉग से गुजारते हैं तो इसका इम्पैक्ट क्या होता है? जब हम इसको लॉग से गुजारते हैं, अगर आप लाइक फॉर एग्जांपल देखें तो लॉग जो फंक्शन होता है दैट टर्न्स आउट टू बी अ लिटिल लाइक दिस। लॉग फंक्शन का जो कर्व होता है इट्स लाइक दिस। इसका मतलब क्या होता है? अगर हम मिसाल के तौर पर, इट डिपेंड्स ऑन द बेस। फर्स्ट करें हम बेस 2 लॉग की बात कर रहे हैं, ठीक है, हम बात कर रहे हैं बेस 2 log p, राइट। अगर हमारी यहाँ f की वैल्यू है 8, यानी यहाँ हम 0 1 2 3 4 5 6 7 8 प्लॉट कर लेते हैं। अगर हमारे log की वैल्यू है, अगर हमारे या जो f की वैल्यू है वो है 8, ठीक है, तो log ऑफ f की वैल्यू क्या होगी? 3, राइट। वाई? बिकॉज लॉग का मतलब क्या होता है? जब आप किसी नंबर का लॉग लेते हैं तो उसका मतलब क्या होता है कि बेस की कौन सी पावर है जो आपको वो नंबर देगी, राइट। सो फॉर एग्जांपल वी मे हैव टॉक्ड अबाउट इट अर्लियर एज वेल, बट लेट्स जस्ट हैव अनदर डेमो ऑफ द सेम थिंग। सो बेसिकली वी से दैट व्हाट इज log 8 with base 2? बेस मैटर्स, ठीक है। बेसिकली इसका मतलब ये है व्हाट पावर ऑफ बेस which is 2 in this case gives 8। तो 2 की कौन सी पावर है जिससे हमें 8 मिलेगा? 3। so this is equal to 3, right? Similarly, if you have log 4 base 2, what will be the answer? 2, because 2 raised to power 2 is 4. So this is what log function does, right? So suppose अगर हम यहाँ कहें कि यहाँ वैल्यू तकरीबन 8 है, यहाँ 4 है, यहाँ 0 है, यहाँ 2 है, यहाँ 6 है, यानी ये हम x एक्सिस पे वैल्यूज लिख रहे हैं, ठीक है। So suppose this value here is 3. So log 8 will be 3, right? Log 4 will be 2, right? And log 2 will be 1, right? And so basically 2 raised to power 1 is 1, right? And log 0 will be, it will be like log 0 will be 2 raised to power 0 is 1. So log, if you take 0 log 0, 2 raised to power 0 is 1. So the log 0 will be 1 in that case or whatever. Okay. So anyway, the log function is basically going to have this kind of curve. So like it will start, अगर आपका नंबर नीचे जाता जाएगा तो आपका नंबर पावर नेगेटिव में चली जाएगी, right? So you will be going down there. It will be going like this. The log function goes like this, right? So like आप यूँ करें जैसे जैसे नंबर बढ़ रहा है, log function बढ़ रहा है, लेकिन उसकी बढ़ने की रफ्तार कम से कम होती जा रही है, right? अच्छा, अगर आपका log फंक्शन इस तरीके से कर्व कर रहा है तो आपका नेगेटिव log का कर्व क्या होगा? Exactly opposite. That will be like this. So if the log function is curved like this,
the negative log is going to be like this because simply उसकी direction reverse हो जाएगी, right? Okay. The next thing is, ये तो हो गया कि हमारा log function किस तरीके से plot होता है। अगली बात ये कि जो हमारी values हैं जिनको हम predict कर रहे हैं वो restricted हैं 0 और 1 के दरमियान। हमारी output जो आएगी logistic function से वो 0 होगी या 1 होगी। इसका मतलब ये है कि हमारा जो function है जिसको हम फॉर एग्जांपल प्रेडिक्ट कर रहे हैं, हमारा जो फंक्शन है वो यहां आके रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा इस पॉइंट, राइट? बिकॉज व्हेन यू टेक लाइक 1 it is in fact it will be like 1 here or whatever the value is, log 2 raised to power 0 is 1, so like it will be 1 in that case, right? So हमारा फंक्शन 0 और 1 के दरमियान रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। That will confuse us क्योंकि हमारी प्रेडिक्शन आउटकम्स या 0 है या 1 है, तो इसका मतलब ये है कि हमारे लिए इस फंक्शन का सिर्फ ये वाला हिस्सा रेलेवेंट है, इतना, बाकी जो आगे का सारा हिस्सा है वो हमारे लिए रेलेवेंट नहीं है क्योंकि हमारी आउटकम 0 और 1 के दरमियान रिस्ट्रिक्टेड है, राइट? सो वी लेट गो ऑफ दिस एरिया, हम सिर्फ ये वाला हिस्सा जो है फंक्शन का, क्योंकि हम नेगेटिव लॉग ले रहे हैं तो आप यूँ कहेंगे सिर्फ ये वाला एरिया जो है हमारे लिए रेलेवेंट है इस केस में और बाकी सारे एरिया हमारे लिए इररेलेवेंट, राइट? ओके। अच्छा, अब बेसिकली अगर आप इसको प्लॉट करें, यहाँ पे मिसाल के तौर पे अगर आप देखें अगर हम इसको यहाँ पे प्लॉट करें, ठीक है, सो हमारे पास आउटकम्स हैं 2, ठीक है। फर्स्ट करें हमारी आउटकम है 1, ठीक है। अगर हमारी आउटकम 1 है और हमारी प्रेडिक्शन भी क्लोज टू 1 है तो हमारा लॉस होगा मिनिमम। जैसे ये जो एरिया है हमने इसको जूम करके यहाँ पे प्रिंट कर, यहाँ पे शो कर दिया, ठीक है। यानी ये जो फंक्शन का हिस्सा था, इस फंक्शन के हिस्से को हमने यहाँ पे प्लॉट किया, ठीक है। अब अगर आपका ट्रू लेवल 1 है और आपकी प्रेडिक्शन भी 1 के करीब है तो आप कहेंगे कि आपका लॉस मिनिमम है। ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर आपका एक्चुअल लेवल 1 है और आपकी प्रेडिक्शन 0 के करीब है तो आपका लॉस मैक्सिमम है, राइट? सो दिस इज व्हाट दिस फंक्शन इज टेलिंग यू कि अगर आपकी एक्चुअल वैल्यू 1 है और प्रेडिक्शन भी क्लोज टू 1 है, जितनी क्लोज टू 1 है उतना लॉस कम है क्योंकि उन दोनों का डिफरेंस उतना ही कम है। आइडियली अगर प्रेडिक्शन भी 1 है और एक्चुअल वैल्यू भी 1 है तो 1 - 1 0, लॉस 0 है। अगर आपकी एक्चुअल वैल्यू 1 है और प्रेडिक्शन 0.9 है तो 0.9 - 1 0.1 का फर्क है इसके दरमियान, ठीक है। तो यानी जितना क्लोज टू 1 है उतना ही लॉस कम है और जितना अवे फ्रॉम 1 है उतना ही लॉस ज्यादा है। अच्छा, अब लॉस भी ज्यादा 0 और 1 के दरमियान ही होगा क्योंकि आपकी लेवल्स जो है वो 2 ही हैं, राइट? सो दिस फंक्शन विल बेसिकली बी टेलिंग यू, ये जो लॉग फंक्शन है ये आपको एक वैल्यू रिटर्न कर रहा होगा जो 0 और 1 के दरमियान होगी, और चूंकि आपकी प्रेडिक्शन प्रोबेबिलिटीज भी 0 और 1 के दरमियान आ रही हैं लिहाजा आप उनकी सब्ट्रैक्शन से इस लॉस की वैल्यू निकाल लेंगे। तो 1 के केस में आप चाहेंगे कि आपकी प्रेडिक्शन भी 1 के करीब हो तो लॉस कम होगा। अगर आपकी प्रेडिक्शन फॉर एग्जांपल 0 के करीब आई तो आप कहेंगे लॉस बहुत ज़्यादा है एंड यू नीड टू रियली फाइंड ट्यून योर पैरामीटर्स फर्दर, राइट? सिमिलर इज द केस जब आप फॉर एग्जांपल यहाँ पे जाएंगे, 0 के केस में जाएंगे, ठीक है। अगर आपकी एक्चुअल प्रेडिक्शन 0 है, राइट, तो उस केस में आपका प्लॉट जो है वो दैट विल बी लाइक स्लाइटली डिफरेंट, इट विल बी लाइक दिस। जब आप 1 - लॉग करेंगे तो ये प्लॉट इनवर्स हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। सो लाइक लॉग के केस में अगर ये ऐसे जा रहा है तो 1 - करेंगे तो इट विल बिकम लाइक एग्जैक्टली लाइक दिस। इस केस में अगर आपका एक्चुअल लेवल 0 है और प्रेडिक्शन भी 0 है तो लॉस मिनिमम है, और अगर आपका एक्चुअल लेवल 0 है और आपकी प्रेडिक्शन जितनी ज़्यादा क्लोज टू 1 है तो आपका लॉस भी उतना ही ज़्यादा होगा, राइट? सो आप चाहते क्या है कि लॉस मिनिमाइज करना, राइट? सो अब ये जो हमने बाइनरी लॉग लॉस लॉजिस्टिक लॉस का जो फंक्शन डिफाइन किया है, जो ये कहता है कि आप अपनी प्रेडिक्शन के लिए जो लॉस फंक्शन है उसको यूँ डिफाइन कर सकते हैं कि अगर आपका एक्चुअल लेवल 1 है तो आप लॉस फंक्शन को लें -log ऑफ द प्रेडिक्शन, और अगर आपकी प्रेडिक्शन 0 है तो आप अपने लॉस को लें -log ऑफ 1 - प्रेडिक्शन, राइट? सो दैट्स इट।
ये आपका एक नया लॉस फंक्शन है जो हमने अडॉप्ट किया। हमने मीन स्क्वायर्ड एरर को क्यों रिजेक्ट किया, वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट दैट। Now we have developed a new function that is called logistic loss function, or like binary cross entropy, or like a logistic loss function, binary log loss function. So we have like these number of names that we associate with this function. And what we have told is that why does this function make sense? हमारी outcome 0 और 1 के दरमियान restricted है, right? लॉग की मदद से हम अपनी प्रेडिक्शन और लॉस के दरमियान एक मैपिंग डिफाइन कर लेते हैं और हम ये अश्योर करते हैं कि जो हमारे एक्चुअल लेवल और प्रेडिक्टेड लेवल का फर्क है वो भी 0 और 1 के दरमियान ही रहेगा। सो इट बिकम्स मोर रेलेवेंट, राइट? ओके, सो अब हम चाहते क्या है कि हमारी जो प्रेडिक्शन है वो एक्चुअल लेवल के करीब से करीब हो, ठीक है? जितनी दूर होगी उतना ही लॉस फंक्शन बड़ा होगा और उतना ही ज़्यादा इस बात का इम्कान होगा कि हम वेट्स को अपडेट करें। और जब तक वो वेट्स अपडेट होके हमें यहाँ तक नहीं ले आते कि हमारी एक्चुअल प्रेडिक्शंस और एक्चुअल लेवल्स, हमारी प्रेडिक्शंस और एक्चुअल लेवल्स का फर्क कम से कम नहीं हो जाता, तब तक हम अपने वेट्स को या पैरामीटर्स को अपडेट करते रहेंगे, राइट? अब हम इसको लाइक ये जो लॉस है इसको हम कॉस्ट फंक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। आपको पता है कि बेसिकली लॉस में और कॉस्ट में क्या फर्क होता है। So loss is for one training example. एक ट्रेनिंग एग्जाम्पल पे प्रेडिक्शन और एक्चुअल लेवल का जो फर्क है उसको हम लॉस कहते हैं। और जब हम तमाम ट्रेनिंग सेट के लॉसेस को जमा कर लेते हैं तो उसको हम कॉस्ट कहते हैं, राइट? तो अब ये जो लॉस फंक्शन हमने डिफाइन किया है इसकी बेसिस के ऊपर अगर हम अपना कॉस्ट फंक्शन डिफाइन करें तो दैट विल बी कि आप अपनी प्रेडिक्शन लीजिए, एक्चुअल लेवल लीजिए, उसका लॉस कैलकुलेट कीजिए और वो लॉस कौन सा है? लॉग लॉस, जिसको हम नीचे एक्सपेंड कर लेंगे। और फिर क्या करें? तमाम का सम कर लें और फिर उसका मीन ले लें। तो बिल्कुल जैसे हम मीन स्क्वायर्ड एरर लेते थे इसी तरीके से हम मीन लॉग एरर ले रहे हैं इस केस में, राइट? कर वही रहे हैं, सिर्फ ये कि हमारा कंप्यूटेशन डिफरेंट हो गया। और इसको अगर आप एक्सपेंड करें तो ये क्या होगा कि जब आपकी प्रेडिक्शन 1 है तो आप नेगेटिव लॉग ऑफ द प्रेडिक्शन ले रहे हैं, और जब आपकी प्रेडिक्शन जब आपकी एक्चुअल लेवल 1 है तो आप नेगेटिव लॉग ऑफ प्रेडिक्शन ले रहे हैं, और जब आपका एक्चुअल लेवल 0 है तो आप नेगेटिव लॉग ऑफ 1 माइनस प्रेडिक्शन ले रहे हैं, राइट? अब इसका फायदा हमें क्या है? विदाउट अगेन प्रूविंग दैट दिस फंक्शन इज कॉन्वेक्स फॉर लॉजिस्टिक रिग्रेशन, वी जस्ट रिजेक्टेड मेनली फॉर वन रीजन। हमने मीन स्क्वायर्ड एरर को लॉजिस्टिक रिग्रेशन के लिए इसलिए रिजेक्ट किया था कि वो कॉन्वेक्स नहीं था। ये फंक्शन जो अभी हमने डिफाइन किया है, इट टर्न्स आउट दैट दिस इज कॉन्वेक्स फॉर लॉजिस्टिक रिग्रेशन, एंड अगेन वी विल नॉट बी टॉकिंग अबाउट द प्रूफ ऑफ दिस दैट व्हाई इट इज लाइक कॉन्वेक्स, वी जस्ट लाइक गो ऑन विद द बिलीफ दैट इट इज कॉन्वेक्स। चूंकि ये फंक्शन कॉन्वेक्स है इसलिए हमारे पास ये गारंटी मौजूद है कि हमारा ग्रेडियंट डिसेंट इसके मिनिमम तक पहुंच जाएगा, क्योंकि एक ही मिनिमम है और ग्रेडियंट आहिस्ता आहिस्ता मूव करता हुआ 0 तक पहुंच ही जाएगा। सो दैट्स व्हाई वी टेंड टू गो विद दिस लॉस फंक्शन फॉर लॉजिस्टिक रिग्रेशन इंस्टेड ऑफ द मीन स्क्वायर्ड एरर। और यहाँ तक जाने का तरीका क्या है? हमने वही करना है जो हम पहले कर रहे थे ग्रेडियंट डिसेंट के अंदर, कि आप W और B की पैरामीटर्स को अपडेट कर रहे थे, आप ग्रेडियंट कंप्यूट करते हैं, लर्निंग रेट से मल्टीप्लाई करके वेट्स की पहली वैल्यू से माइनस कर देते हैं या उसमें ऐड कर देते हैं और B को इसी तरीके से अपडेट करते हैं। तो आप W और B की वैल्यूज को कंटिन्यूसली अपडेट करते रहते हैं तावत्ते के आप ग्रेडियंट आपका 0 या क्लोज टू 0 चला जाए या आपका लॉस इनफ मिनिमम तक पहुंच जाए, और तब आप कहेंगे यस इट इज गुड इनफ, नाउ वी डोंट नीड टू गो एनी फर्दर बियॉन्ड दिस पॉइंट, राइट? Any confusion till this point? Okay. So अब हम इस फंक्शन को इकट्ठा करते हैं ताकि एक सम की सूरत में हम इसको लिख सकें। So we said okay, our loss function is negative log of prediction if the actual level is 1 and negative log of 1 minus prediction if actual level is 0, right? अब अगर आप इसको इकट्ठा करके लिखें तो दिस टर्न्स आउट कि आप इसको यूं यानी आप अलग अलग मेंशन करने की बजाय हम इसको एक एक्सप्रेशन की शक्ल में लिखते हैं। यानी हम ये कहने की बजाय कि 1 के लिए अलग लॉस फंक्शन को चेक करें और 0 के लिए अलग लॉस फंक्शन को चेक करें, हम इसको इकट्ठा करके एक एक्सप्रेशन की शक्ल में लिखने लगे ताकि वो 0 हो या 1 हो इस पर डिपेंड ना करे, दोनों सूरतों में ठीक काम करे। सो हम क्या कहते हैं
that your loss function is now going to be minus y, which is the actual label, into log of this. So what we say in this case is कि आपका जो loss function है that will be minus y into log of the prediction. अब आपको मालूम है ये जो हिस्सा है ये कह रहा है कि ये हिस्सा सिर्फ उस सूरत में यूज होगा जब y 1 होगा. अगर y की वैल्यू 1 है तो ये टर्म स्टे करेगी, इस टर्म में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये टर्म स्टे करेगी. लेकिन अगर y की वैल्यू 0 है तो ये टर्म 0 से मल्टीप्लाई होके 0 हो जाएगी. यानी इन अ वे हम ये कह रहे हैं कि ये वाली टर्म सिर्फ उस सूरत में इसमें ऐड होगी अगर y की वैल्यू 1, राइट. अगर y की वैल्यू 0 होगी तो ये टर्म ऐड नहीं होगी. और यही हम यहाँ कहना चाह रहे हैं कि y 1 है तो ये रखें, वरना ये नहीं होगा. फिर क्या होगा? 1 minus y, राइट. 1 minus y क्या है? लाइक अगर आपकी एक्चुअल प्रेडिक्शन 0 है तो 1 minus 0 क्या होगा? 1, राइट. सो दैट मीन्स आप ये कह रहे हैं कि अगर आपका एक्चुअल लेवल 1 है तो ये वाली टर्म, अगर आपका एक्चुअल लेवल 1 है तो ये वाली टर्म, और अगर आपका एक्चुअल लेवल 0 है तो ये वाली टर्म इस्तेमाल करें कंप्यूटेशन के लिए. डज इट मेक सेंस? राइट. सो लाइक जब आपका एक्चुअल लेवल 1 होगा तो दिस टर्म विल स्टे एंड दिस 1 minus 1 0 एंड दिस होल विल बी 0, so ये टर्म निकल जाएगी. सिमिलरली अगर आपका एक्चुअल लेवल 0 होगा तो ये 0 से मल्टीप्लाई होकर ये वाली टर्म निकल जाएगी एंड दिस 1 minus 0 विल बिकम 1, सो ये टर्म्स. तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो जो आगे ऊपर हमने दो अलग अलग टर्म्स लिखी हुई थी उन दोनों टर्म्स को हमने इकट्ठा करके यूं लिख दिया और ये स्टिल हमें वही इफेक्ट देता है जो हमने अलग अलग में लिया हुआ था. 1 के केस में भी वो उसको कैटर कर लेगा और 0 के केस में भी वो उसको कैटर कर लेगा, राइट. Okay. So this is just that same thing explained here. So अब इस लॉस फंक्शन से, जो कि एक ट्रेनिंग एग्जांपल के लिए इससे हम कॉस्ट फंक्शन डिफाइन कर लेते हैं. हम कहते हैं कि ठीक है आप लॉस फंक्शन अपना लीजिए जो कि इसके बराबर है, ठीक है, और फिर इन सब को सम कर लीजिए और उनका मीन ले लीजिए, राइट. टेक योर लॉस फंक्शन which is equal to this, right. इस लॉस फंक्शन को लीजिए, तमाम ट्रेनिंग एग्जांपल पे 1 से लेके n तक तमाम ट्रेनिंग एग्जांपल्स के लिए ये लॉस कंप्यूट कीजिए, उनका सम कर लीजिए और फिर उसको m से डिवाइड करके इसका मीन ले लीजिए, राइट. दिस इज व्हाट यू हैव डन हियर, राइट. एंड अल्टीमेटली अगर आप इस लॉस को यहाँ पे प्लेस करें तो आप क्या करेंगे, ये जो नेगेटिव टर्म है, ये वाली नेगेटिव टर्म और ये वाली नेगेटिव टर्म, इसको आप ले आए यहाँ बाहर तो अंदर क्या हो जाएगा, ये दोनों टर्म्स पॉजिटिव हो जाएंगी. सो दिस विल बिकम y into log plus 1 minus y into log of prediction, right. So ये जो डन है आपने सिंपली नेगेटिव को कॉमन ले लिया बाहर यहाँ पे, राइट. तो अंदर की दोनों टर्म्स आपकी पॉजिटिव हो गई, राइट. As I said that we call it like logistic loss function, your logistic loss function or log loss function or even binary cross entropy or even maximum likelihood, right. So like we don't really need to go much into these terms, so we will just like stay with that. This function will work with us because it is complex. The next thing is that we go with gradient descent over this. सारे हमें पैरामीटर्स को लर्न करना है. पैरामीटर्स हम क्यों लर्न करते हैं? क्योंकि हमारे पास जो लॉस की वैल्यू आएगी हमें उस लॉस की वैल्यू को मिनिमाइज करना है. उस लॉस की वैल्यू को मिनिमाइज करने का तरीका क्या है? आप अपने पैरामीटर्स की वैल्यूज एडजस्ट करके देखें. यानी अगर आप इस साइड में होंगे तो ग्रेडियंट को बढ़ा के इधर को ला रहे होंगे, W की वैल्यू में इजाफा कर रहे होंगे. अगर आप इस साइड में होंगे तो आप उसको कमी कर रहे होंगे, ठीक है. तो W या W's, जितने भी W's हैं, जितने आपके पास इनपुट फीचर्स होंगे उतने ही आपके पास W's होंगे. तो आप W's की वैल्यूज को और B की वैल्यूज को एडजस्ट कर सकते हैं, राइट. सो वो एडजस्ट करने का तरीका आपके पास क्या है? आप ग्रेडियंट डिसेंट का इस्तेमाल करते हैं. तो सबसे पहले हमने दो टर्म्स पहले डिफाइन की हुई हैं, फॉरवर्ड प्रोपेगेशन और बैकवर्ड प्रोपेगेशन. फॉरवर्ड प्रोपेगेशन क्या है? ये निकालिए आपको, ठीक है. जब आप पैरामीटर्स अपने लेते हैं W's और B's और आप कोई इक्वेशन इस्तेमाल करते हैं
जहाँ आप ये कह रहे होते हैं दैट लाइक इट इज द प्रोडक्ट ऑफ डॉट प्रोडक्ट ऑफ डब्ल्यूज एंड एक्सेस द इनपुट्स प्लस बी, राइट। सो लाइक ये कंप्यूट करते हैं और इसके ऊपर फिर जब आप लॉजिस्टिक इसके ऊपर जब आप सिग्मॉइड फंक्शन अप्लाई करते हैं तो ये जो आउटकम आपके पास आती है जो कि बेसिकली आपको बता रही होती है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द प्रेडिक्शन बीइंग 1 given that you have the inputs x and the parameters w and b। तो ये जो प्रेडिक्शन प्रोबेबिलिटी आपने कैलकुलेट की है कि ये 1 होगा या 0 होगा, जो प्रोबेबिलिटी आपने निकाली है ये आपका फॉरवर्ड पास था, ठीक है। ये फॉरवर्ड पास जब आपने कंप्यूट कर लिया, अब आपके पास आपकी प्रेडिक्शन आ गई। आप प्रेडिक्शन और एक्चुअल लेवल का फर्क नहीं देके लॉस फंक्शन कंप्यूट कर लेंगे। जब आप लॉस फंक्शन कंप्यूट करेंगे तो फिर आप बैकवर्ड चल पड़ेंगे और आप अपने पैरामीटर्स के ग्रेडियंट्स कंप्यूट करेंगे, यानी w is equal to w minus alpha into derivative of the loss function with respect to w, right? And similarly b is equal to b minus alpha into derivative of the loss function with respect to b। तो आप ये छोटी-छोटी सी अपडेट्स w's में और b's में कर लेंगे बैकवर्ड जाते हुए। अब बैकवर्ड जाते हुए जब आपने w's और b's की वैल्यूज को अपडेट किया, अब आप दोबारा फॉरवर्ड पास करेंगे। फॉरवर्ड पास में क्या करेंगे कि अब आप w's और b's की जो नई वैल्यूज हैं उनको इस्तेमाल करके ये प्रेडिक्शन कैलकुलेट करेंगे, राइट। जब आप ये प्रेडिक्शन दोबारा कैलकुलेट करेंगे तो आप दोबारा लॉस फंक्शन कंप्यूट करेंगे, ठीक है। लॉस फंक्शन में एक्सपेक्टेडली कुछ तब्दीली आई होगी, ठीक है। वो जो तब्दीली आई होगी अगर वो अभी भी काफ़ी नहीं है तो आप फिर बैकवर्ड चल पड़ेंगे और फिर दोबारा नई पोजीशन जहाँ पे आप हैं लॉस फंक्शन के अतबार से आप w's और b's की वैल्यूज दोबारा अपडेट करेंगे। दोबारा अपडेट करने के बाद आप फिर दोबारा फॉरवर्ड पास करेंगे, दोबारा प्रेडिक्शन कैलकुलेट करेंगे, राइट। दोबारा प्रेडिक्शंस कैलकुलेट करेंगे तो फिर दोबारा लॉस फंक्शन कंप्यूट करेंगे। अगर लॉस फंक्शन अब आपको लगता है कि ठीक है, ठीक जगह पे पहुंच गया तो रुक जाएंगे, वरना दोबारा फिर वही करेंगे, बैकवर्ड चलेंगे, बैकवर्ड प्रोपेगेशन करेंगे और ग्रेडियंट्स कंप्यूट करेंगे, w और b की नई वैल्यूज निकालेंगे और फिर दोबारा फॉरवर्ड चल करेंगे। तो बुनियादी तौर पे जो आपका यानी ग्रेडियंट डिसेंट है वो आपको मल्टीपल फॉरवर्ड और बैकवर्ड प्रोपेगेशन दोनों को मिलाकर कहते हैं कि एक साइकिल कंप्लीट किया आपने, एक पास कंप्लीट किया। हर पास दो साइकिल्स में दो चीज़ों पे मुश्किल है, फॉरवर्ड प्रोपेगेशन पे और यानी प्रेडिक्शंस कैलकुलेट करना और फिर बैकवर्ड प्रोपेगेशन पे यानी वेट्स को एडजस्ट करना, राइट। और फिर दोबारा जो फॉरवर्ड प्रोपेगेशन है वो एडजस्टेड वेट्स के साथ दोबारा प्रेडिक्शन कंप्यूट करेंगे। तो ये साइकिल्स आपके चलते रहेंगे तावत के आपके ग्रेडियंट की वैल्यू 0 हो गई, आपका लॉस फंक्शन इतना कम हो गया कि आपको लगता है कि आपको मज़ीद लर्न करने की जरूरत नहीं है, एंड सो ऑन सो फोर्थ। So this is how your gradient descent will now look like. The cost function is already there in place for you, right? So आप क्या करते हैं कि आपने पैरामीटर्स की वैल्यूज को अपडेट करते हैं। wj is equal to wj minus alpha into derivative of the loss function with respect to wj, and similarly b is equal to b minus alpha into derivative of partial derivative of the loss function with respect to b, right? और अगर आपको याद हो तो ये डेरिवेटिव हमने लास्ट टाइम देखा था, this turned out to be like this xj, like ये इसका डेरिवेटिव था, and we said that we are not going to like actually see that how this derivative is computed. We just say that this is the derivative that we get for like loss function with respect to w, and this is the derivative that we get for the loss function with respect to, right? So like this is the update that we will be applying to our weights. So अब यानी फॉरवर्ड पास में लॉस फंक्शन तक हम चले गए, फिर हमने क्या किया, बैकवर्ड पास शुरू किया और w की और b की वैल्यूज को अपडेट किया। ये बैकवर्ड पास कंप्लीट हो गया। अब w और b की नई वैल्यूज आ गई, उनको इस्तेमाल करके दोबारा फॉरवर्ड पास में चले गए, दोबारा प्रेडिक्शन निकाली, नई w और b की वैल्यूज के साथ दोबारा लॉस फंक्शन कंप्लीट किया, ठीक है। फॉरवर्ड पास कंप्लीट हो गया, फिर बैकवर्ड से चले, फिर दोबारा w और b की वैल्यूज को तो लाइक जो बेसिकली हमारा फंक्शन है जिसको हम यहाँ पे दिखा रहे थे, फॉर एग्जांपल लाइक दिस। सो बेसिकली एक पास जो आप कंप्लीट करते हैं वो आपको ये एक स्टेप देता है, फिर दूसरा पास ये स्टेप देता है, यानी आप आहिस्ता आहिस्ता लोकल मिनिमम की तरफ मूव कर रहे होते हैं यूजिंग दीस फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड पास।